Assalamualaikum and welcome everyone. My name is Daniel Hayat. Today we are again having a CCOS webinar live on Facebook. Meet the industry leaders of CCOS University. इस वेबिनार में हम अपनी एलुमनाई को इनवाइट करते हैं ताकि हमारे जितने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं या करंट स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट्स standing in the industry in CCOS University. So today we have Daniel, I think we lost you. Daniel, no audio. Sorry, we had a bit of disruption. So we have the second speaker with us as Muhammad Imran, who is an entrepreneur and founder of Nano IT Solutions, Pakistan. He was a gold medalist in computer science from CCOS University. So welcome aboard. Without any further ado, मैं मोहसिन सबसे पहले मेरा question जो है वो आपके लिए होगा, and that is कि tell us about the Central Asian Cellular Forum. What is its objective? What is its goal? What does it do? So थोड़ी सी briefly अपने बारे में बताएं और अपने forum के बारे में थोड़ा सा kindly share करें. Thank you, Daniel. First of all, thank you so much, CCOS, for honoring us to be on this platform. It's always been a pleasure to be part of CCOS, and still we are part of CCOS. It can never be untouched. So that's like आपने जैसे बताया कि after graduation I worked in Mobile and Jazz for almost 5 to 6 years as an operation access network engineer, and then I moved on to as a project manager to Dubai, to one of the firm, for almost 1 year, and then from there almost 9 to 10 years I am Central Asian Cellular Forum. The legal name is 3G Technologies. They are working into 3G, 4G, and now 5G. We are mainly working with Qualcomm. Qualcomm is a Fortune 500 company. Uski tech marketing, unki software development, हम लोग करते हैं. One of the major platform which we have done in last 5 years is DIRBS, Device Identification Registration and Blocking System, जो पाकिस्तान में implemented है. अगर आप में से किसी को भी PTA की तरफ से मैसेज आया है कि आपकी डिवाइस टैक्स की वजह से ब्लॉक हो रही है और नहीं रजिस्टर हुई, so that's something has been done by us, and I'm actually leading that project. Apart from that, we are also giving trainings not only in Pakistan but in Central Asia, Middle East, and Africa as well. We are into a telecom and a software business. अच्छा, brilliant. So मतलब ये है कि आपका IT सेक्टर में पाकिस्तान में माशाल्लाह से काफी you have a brilliant profile, और जितने भी ये PTA का मुझे नहीं था पता कि ये messages जो है ये warning के बार-बार आप लोग की तरफ से आते हैं. So which is a brilliant initiative, I think. इससे काफी जो है जो हमारे जो मैसेज थे ये टेररिज्म के हो गए या अनरजिस्टर्ड सेल फोन्स वगैरह ये यूज होते थे. सो कुडोस टू यू कि आपने मतलब जो आप सिस्टम ये हैंडल कर रहे हैं, मतलब दिस इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव इन दैट. सो थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स इन दिस सेक्टर. सो माय नेक्स्ट इमरान, मैं आप चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, so थोड़ा सा हमें बताइए आपका जो इनिशिएटिव था नैनो आईटी सॉल्यूशंस, एंड व्हाई डिड यू चूज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. मतलब आप किसी और सेक्टर में क्यों नहीं गए, एंटरप्रेन्योर बनना आपने क्यों चूज किया? Thank you very much. It's a pleasure being here. Imran, are you with us? Being a part of the such an activity it's a pleasure being here. CCOS University
पहले से एजाज रहा है कि जो सीकॉज में स्पेशली उन्होंने जो एकेडमिक्स में और जो काफ़ी अप्रिशिएटिव एनवायरमेंट के सारे पाकिस्तान में सीकॉज बीइंग इन इन्विटेशन थ्रू आउट ऑल पाकिस्तान एंड हम लेकर आए थे यूनिवर्सिटी के बाद एक सॉफ्टवेयर फॉर्म था गेम डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान, उसको मैंने ज्वाइन किया था और तकरीबन 5 हाय आवाज आ रही है? Imran, you should carry on. I think so. Daniel, I think so. Connectivity वजह से offline हो गए हैं, तो आप please continue रखें. ठीक ठीक जी जी ठीक. तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया. कुछ इश्यूज आ गई स्वाप में, आईडीपीज वगैरह के, टेररिज्म वगैरह की इश्यूज आ गई, तो उसकी वजह से मुझे बैंक ऑफ लेबर ज्वाइन करना पड़ा और तकरीबन 10 साल मुझे बैंक ऑफ लेबर में लगे. वहाँ एटीएम हो सॉफ्टवेयर, लोन मैनेजमेंट सिस्टम्स, इस किस्म की काफ़ी वेरियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस हमने बनाए जो हार्डवेयर ओरिएंटेड थी. सॉफ्टवेयर की इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और उसके साथ साथ चीज़ें थी. तो बैंक जॉब के साथ साथ वही मेरी रिसर्च R&D चलती रही घर में. और घर ही में पहला मोशन प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था बैक इन 2017, जो कि पाकिस्तान का पहला इंडिजिनस मोशन प्लेटफॉर्म था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड. तो फिर उसको हमने पब्लिक के लिए एक कॉन्फ्रेंस थी, डिजिटल यूथ समिट 2017, उसमें हमने अनवील किया. पब्लिक ने उसको देखा, उसमें हमने पता लगा कि यार वो जो एडिक्शन लेवल था काफ़ी ज़्यादा था, उसकी जो प्रोडक्ट की रेजिलियंस और रोबस्टनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम पब्लिक के लिए ओपन कर दें एक आर्केड की सूरत में. तो बैक इन 2018 हमने एक आर्केड चेन इनिशिएट किया VR हेयर के नाम से, वर्चुअल रियलिटी हेयर, जो कि पाकिस्तान का पहला जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल और टूरिज्म एक्सपीरियंसेस भी मिल रही होती. और उसमें हमने अपने प्रोडक्ट रखे, वेरियस अदर सिलावर में हमने लोगों के लिए ओपन की, जिसमें HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation 4 VR, इस किस्म के जितनी भी कटिंग एज चीज़ें थी वो हमने डिस्प्ले में रखी और उन्होंने वहाँ से एंटरटेन होना शुरू किया. उसके बाद हमने वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए, जिसमें हम पाकिस्तान की टूरिज्म के इमर्सिव राइड्स हमने वहाँ मैप करना शुरू कर दी. मसलन मालूम जब्बा के केबल कार के एक्सपीरियंसेस, स्नो ट्यूबिंग के एक्सपीरियंसेस, स्कीइंग एक्सपीरियंसेस हमने इस लिहाज से वहाँ मर्ज किए कि आपको वर्चुअल रियलिटी इधर उधर देखते हुए आपको बाकायदा टूर गाइड आपको मिल रहा होता था और आपको बाकायदा ब्रीजेस, ठंडी हवाएं और वही मोशन और हैप्टिक फीडबैक्स और सारी चीजें मिल रही थी. तो फिर उसके बाद एक कंपटीशन था, स्टार्टअप कंपटीशन पाकिस्तान में. उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, जो कि मोर देन 2200 कंटेंटर्स थे उसमें. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जितनी भी बिग सिटीज थी पाकिस्तान से, उन्होंने कम्पीट किया और माशाल्लाह उसमें हमारा फर्स्ट प्राइज आया. तो उसके बाद हमने हमारे अभी 3 आर्केड्स चल रहे हैं, एक इस्लामाबाद में, 2 पेशावर में, गैरिसन पार्क में और यूनिवर्सिटी रोड पे. तो ये हमारी जर्नी थी इसकी. और 2018 में मैंने बैंक जॉब जो थी वो फिर रिजाइन करके फुल फ्लेज इसी एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने रिज्यूम किया. Very interesting, Imran. It's been very जो आपने एक बताया है about a VR, that's something. इसकी VR और especially AR की training we used to give back in 2011. Qualcomm का एक मुझे भी Vuforia platform था. I don't know you remember or not. That's something owned by Qualcomm back in 2008, 9, 10 and 11. उनकी हम लोग AR और VR की ट्रेनिंग्स हम लोग देते थे. We have provided these trainings in Pakistan. फिर यही ट्रेनिंग्स हम लोगों ने मिडिल ईस्ट में भी दी. That's something. हमारे कुछ कोलीग्स थे यहाँ पे जो AR और VR की ट्रेनिंग्स देते थे. Qualcomm इस मामले में is way ahead with the time in terms of technology. So we tried to build that market at that time in Pakistan regarding especially AR.
and we created few apps even for Samsung at that time, जिसमें आप बिलबोर्ड पे अगर आपके पास एक ऐप है और आप बिलबोर्ड पे आप उसको पॉइंट आउट करते हैं तो वो आपको उसका रियल वीडियो प्ले कर देगा रिगार्डिंग दैट एड. It's just a concept. The same goes with the time. AR तो उस लेवल का बिल्ड नहीं हुआ भी तो वो स्नैपचैट इन्होंने इस तरीके से कोप अप किया, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से VR was being more aggressive into the market, especially in gaming and the rest of the industry. Yes, Daniel, welcome back. ठीक, थैंक यू. आज हमारे इंटरनेट के साथ थोड़ा सा इशू आ रहा था, बट आई एम ग्लैड दैट यू गाइस कंटिन्यूड. अच्छा, सो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी. जी जी, हां, वेलकम बैक. जी प्लीज दानियल. I think अभी भी there is some issue at Daniel's end, कुछ connectivity का problem है. You're back. I hope you guys can hear me. So my name, you have 14 years of experience. Amazon is also entering into the market of Pakistan and can you hear me? Daniel, I can hear you. I think so, but I think there is some issue at Imran, at connectivity issue at Imran's end. I think so. अच्छा Mohsin, did you get my question or should I repeat? No, can you repeat because आपकी आवाज नहीं आ रही थी इस वक्त. I'm really sorry. चलिए ठीक है. My question for you is कि देखिए आपका 14 years का experience है in this sector. Amazon को देख लिया, Amazon is also entering into the Pakistani market. काफी और industries भी अभी आ रही है. तो मतलब e-commerce का और ICT sector जो है इसमें आपको कितना potential नजर आता है? क्या students को इस field की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या अगर जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? तो आप थोड़ा सा e-commerce और ICT के sector के बारे में if you could share with that. दानियल, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ई-कॉमर्स इज वन ऑफ द पोटेंशियल एरिया स्पेशली इन पाकिस्तान. थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका अभी भी पोटेंशियल है, लेकिन बाकी मैच्योर मार्केट में इट्स बीइंग अ बिट डिफिकल्ट टू बी पेनिट्रेटेड. बट वी आर ब्लेस्ड. अब हमारे एरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं कि का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. अगर मैं पीछे चला जाता हूँ, इवन विद इन दिस सेंट्रल एशियन सेलर फोरम we used to have incubation center. इसमें बहुत से हम लोगों ने we have a contract with an agreement with CCOS as well, जिसमें हम लोग बहुत से young entrepreneurs को लेके उनकी एक टीम बिल्ड करते थे और जिसकी बेस पे वो करते थे, उनका प्रोडक्ट्स बिल्ड होते थे. Let's back to the e-commerce. उसमें एक हम लोगों ने इनिशिएटिव रन हुआ which is with the name of Phone Express. हमारा एक स्टूडेंट था who was being very obsessed with Alibaba and AliExpress. I hope so. You know, both are actually being owned by Jack Ma. तो उसने उसी एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए फोन एक्सप्रेस बिल्ड किया, and he's doing amazing job. We know homeshopping.pk. It was a very small platform named Shayan, who owns that platform. He's doing an amazing job. अगर आप हम दराज को भी देखते हैं तो दराज इज बीइंग जब भी स्टार्ट हुआ था इज बीइंग अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म, इज बीइंग बिल्ड और फिर उसको 2-3 डिफरेंट पार्टीज ने परचेज किया और इज बीइंग ओन्ड बाय अलीबाबा. तो अगर हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी टू यू हैव टू बिल्ड योर ओन प्लेटफॉर्म. सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स. वन फील्ड इज यू हैव टू गो tap in as a digital marketer, and another field is you have to be in the game by Amazon platform. That's another way, and the third one is to have your own platform. जैसे हमने इस pandemic में एक चीज नोट डाउन की है कि there are several startups which we have seen. इसमें बहुत से लोगों ने डिलीवरी जो है घर के लिए for different products करनी शुरू की है. तो this is a huge platform. It's all about आप इसको किस एंगल से और किस तरीके से देखते हैं. बिल्कुल, I completely agree with that.
जो है ये यूट्यूब वगैरह पे अगर आप देखिए, अमेजोन का हो गया, दराज का हो गया, इट्स ह्यूज मार्केट। अमेजोन का आई थिंक लाइक इट्स फार मोर बिगर देन द इकोनॉमी ऑफ होल पाकिस्तान, इतनी बड़ी जो है उनका वो है। सो या देयर इज अ पोटेंशियल इन कंसीडरिंग द फैक्ट, जैसे आपने मेंशन किया कि पेंडेमिक में वी सॉ कि वी वर ऑर्डरिंग एवरीथिंग टू आवर होम। मेरे अपने वालिद साहब जो है मतलब उनको पहले सेल फोन यूज करना जो है, मतलब वो सिंपल सा सेल फोन यूज करते थे, बट नाउ व्हेन आई लुक एट हिम वो घर चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं। सो मैंने कहा कि ओल्डर जनरेशन ने अगर वो स्टार्ट कर लिया ना, तो यंगर जनरेशन तो हम ऑटोमेटिकली उस पे आएंगे। सो या हेल्पफुल। सो इमरान, I was reading somewhere on the internet, so I came across this guy, young guy, Sumail Hassan, जो कि 20 साल का एक यंग नौजवान है पाकिस्तान का, and he was listed as the richest professional gamer. तो चूंकि आप गेम डेवलपमेंट में है, गेम की इंडस्ट्री का थोड़ा सा जो है आपको पता है, तो थोड़ा सा हमें इसकी पोटेंशियल के बारे में बताएं, जो पाकिस्तान में जो आजकल आपने देखा होगा पबजी वगैरह का भी केस चल रहा था, तो क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान में गेम डेवलपमेंट के लिए, या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें क्या ऐसे फर्म्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो गए या बाकी किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स हो गए, वो गेम डेवलपमेंट में आ सकते हैं, क्या पोटेंशियल होगा उनके लिए? गेम डेवलपमेंट बेसिकली काफ़ी आसान हो गई है, चीज़ें काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर आ गई हैं। आप काफ़ी आसानी से, कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट जो है काफ़ी आसानी से ड्रिल डाउन कर सकते हैं उसमें, टेक्नोलॉजीज में, और डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर इकोसिस्टम की बात कर लें तो एप्पल ने काफ़ी एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया हुआ था। अगर हम एप्पल स्टोर की बात कर लें, उसके बाद एंड्रॉइड इकोसिस्टम का हार्डवेयर उन्होंने सेल आउट करना शुरू कर दिया। एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि उसमें अगर प्ले स्टोर की बात कर लें, गूगल प्ले की बात कर लें, तो आप काफ़ी आसानी से गेम डेवलप करके उसमें डिप्लॉय करके उनसे मॉनेटाइज करवा सकते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस जो पहले काफी एक प्रोसेस था, आपको एक हार्ड कोर डेवलपर होना चाहिए था, मैथमेटिकल मॉडल से लेकर वो सारी चीजें, तो वो चीजें भी काफी आसान हो चुकी हैं। काफी अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, गेम इंजन्स आ गए हैं, यूनिटी से लेके अनरियल इंजन से लेके, तो चीजें काफी आसान हो चुकी हैं और लोग उससे काफी अच्छी रेवेन्यूज कमा सकते हैं। अगर मैं पेशावर की मैं देख लूँ तो जनरेट कर रहे हैं काफी सारी चीजें जो कि गेम डेवलपमेंट यही पेशावर में कर रही हैं और इसको कमा रही हैं। तो मैं इंकरेज करूंगा अगर कोई भी डिफरेंट है, बजाय कि हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर काम करें, हार्डवेयर भी हमारा अपना है, सॉफ्टवेयर भी हमारा अपना है, तो उस किस्म की काफी टेलर्ड सॉल्यूशंस हम खुद बना रहे हैं और डिफरेंट है। जी बिल्कुल। मेरा अपना काफ़ी शौक था, हालांकि मुझे गेम डेवलपमेंट का कोई भी आइडिया नहीं था, बट मैं ऐसे ही दोस्त के साथ बैठा हुआ था। ये वर्ल्ड कप का मुझे याद पड़ता है, जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान का हो रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, आप जो है एंड्रॉयड पे या एप्पल पे कोई क्रिकेट का छोटा सा गेम बना लो, एंड देन यू कैन सी उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मतलब मैंने कहा यार मुझे तो कोई आइडिया नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? तो दोस्त ने कहा यार सारे ऑनलाइन टूल्स पड़े हुए हैं, लिटरली बिलीव मी, मुझे 1 घंटे में दोस्त ने मुझे सिर्फ उसके बेसिक सिखा दिए, और मतलब जैसे रेडीमेड टूल्स पड़े हुए थे, आई जस्ट मतलब हैड टू मूव देम हियर एंड देयर, थोड़ा सा वो मुझे आ गया। सो मतलब एज अ ले मैन भी मैं जब मैंने वो देखा कि हाँ भाई यार मैं अगर कर सकता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था, सो व्हाई नॉट अदर पीपल। तो बिल्कुल आप गेम डेवलपमेंट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल इन पाकिस्तान। और अच्छा इसी के बेसिस में थोड़ा सा मोहसिन, मैं एक दूसरा साइड जो है ना, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जॉब नेचर चूंकि बदल रही है ना, कंसल्टेंसी की तरफ बहुत ज्यादा जो है लोग जा रहे हैं। तो आई लुक्ड एट योर प्रोफाइल, यू हैव कंडक्टेड मोर देन 100 वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स फॉर FIA, FBR, मिनिस्ट्री ऑफ IT, टेलीकॉम, कस्टम, मतलब इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए आपने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स कराई, वर्कशॉप्स कराई है। तो एज अ करियर एज अ ट्रेनर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या इसमें लोगों को आना चाहिए, यंग जनरेशन को ट्रेनर्स का जो है उस साइड पे भी आना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर आप।
آپ صحیح کہہ رہے ہیں دانیل, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اسپیشلی آپ کوئی ایسا ایریا ٹیپ ان کرتے ہیں جس کے اسکل ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. جو آپ نے جتنی بھی ٹریننگز کی بات کی ہے اس میں بہت سے انیشیٹو کوالکام کے تھے جو ٹرینر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے تھے. بہت سے انیشیٹو جو تھے جو میں نے لیے وہ ڈربس کے اسکل کے پوائنٹ آف ویو سے تھے, جس میں ہم نے گورنمنٹس کو, ریٹیل مارکیٹ کو, تمام اسٹیک ہولڈرس کو ہم لوگوں نے ٹرین کیا. Let's get back to the training کے point of view سے. I've seen huge potential in terms of consultancy, training, workshops. بہت سے اسٹارٹ اپس بھی میں نے دیکھے ہیں. I guided one of my friend, Dice Analytics. He just started. He was standing with me one day and he said کہ میرے business intelligence کے skills ہیں. He used to work for Telenor. تو اور میں نے دیکھا مارکیٹ میں کوئی نہیں بتا سکتا. تو جسٹ 1-2 سال کی جاب جو آپ لوگ کرتے ہیں اور ایسا اسکل آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹریننگ دے کر آگے آپ کے کیریئر میں چینج ہو سکتی ہے, تو وائی ناٹ. اب اس کو آپ ایز اے اسٹارٹ اپ بھی لے سکتے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹارٹ یور اون کمپنی. یو کین ڈو اٹ فار اینی فرم ایز ویل, بٹ اٹس آل اباؤٹ اسکل. لیکن ٹریننگ کے لیے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ فرسٹ یو ہیو ٹو بی اے سرٹن اسکل جس کو آپ ڈیلیور کر سکیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو موو آن. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو بی 5 سال کا 10 سال کا ایکسپیرینس. دا فرسٹ تھنگ وچ از بینگ ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ وہ اس چیز کو ٹیپ ان کریں جس کی مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے اور جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے, جس کو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. بالکل آپ نے اسکلس کی بات کی اینڈ آئی اسٹرانگلی ایگری ود دیٹ کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں نا کہ جابس کی جو نیچر ہے وہ چینج ہو رہی ہے. ڈگری سے بات جا رہی ہے اب جو ہے اسکلس کی طرف. تو عمران میرا کوشچن بھی اسی کے بیس پہ ہوگا آپ کی طرف کہ دیکھیے اگر آج کل ہم دیکھیں نا لوگ مطلب اف آئی ہیو اے کمپنی تو ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے تو مطلب اس کے پی ایچ ڈی کا مجھے کیا فائدہ کہ اگر وہ میری کمپنی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. I would rather hire a freelancer جو میرا اسپیسیفک ٹاسک ہے وہ مجھے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں کر کے دے سکتا ہے rather than hiring a PhD جو کہ جنرلائز ہے, مطلب یا وہ اسپیسیفک ٹاسک مجھے نہیں کرا کے دے سکتا. تو نیچر چینج ہو رہی ہے تھوڑا سا. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ابھی دیکھ رہے ہیں, ینگ یوتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ان کے ساتھ شیئر کریں کہ فری لانسنگ جو گیا اس کا کیا پوٹینشیل ہے پاکستان میں, یا وہ اگر کیریئر چوز کرنا چاہ رہے ہیں فری لانسنگ کی طرف سے ان کو فری لانسنگ کی طرف جانا چاہیے یا سافٹ ویئر ہاؤسز میں ان کو کام کرنا چاہیے, یا کون سی فیلڈ ہے اسپیسیفکلی کہ اس کی طرف ینگ جنریشن کو جو ہے زیادہ فوکس کرنا چاہیے ان ٹرمز آف دیئر اون کیریئر. اصل میں خود سرٹیفکیٹس اور ڈگریز پر میں یقین نہیں کرتا, قائل نہیں ہوں. بیسک جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بینگ اے گریجویٹ, وہ آپ کو اتنی ساری چیزیں بتا دیتی ہیں کہ آپ کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا راستہ آگے کیسے نکالنا ہوتا ہے. میں اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میں سافٹ ویئر انجینئر, مطلب سافٹ ویئر انڈسٹری سے میں گریجویشن میں نے وہاں سے کی ہوئی ہے. تو پھر ایک تھا پیشن تھا بچپن سے تھا الیکٹرانکس, میکینکس, آٹو موبائلز وغیرہ. تو جو باقی اگر میں الیکٹرو میکینکس کی بات کروں یا میکاٹرانکس کی بات کروں, یہ ساری ایکسپلوریشن میں نے پھر بعد میں خود کی. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ پاکستان کا پہلا انڈیجنس موشن پلیٹ فارم میں نے خود اپنے گھر میں بنایا ہوا تھا. تو اب پہلے مسئلہ تھا آپ کو نالج ایکوزیشن کا, ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے. نالج انٹرنیٹ پر پڑا ہوا ہے, آپ کو بس وہ کنسسٹنسی آپ کو چاہیے ہوگی, وہ آبسیشن چاہیے ہوگا کہ اس چیزوں کو آپ گریب کریں. اسکل سیٹ کی بات کر لیں تو اگر آپ ایلون مسک کی بات کر لیں یا ایون کافی بڑے انٹرپرینیورز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسکلس چاہیے, آپ کو ڈگریز اتنی امپورٹنس ابھی ان کی نہیں ہے. میری پہلی جو جاب ملی ہوئی تھی اسلام آباد میں, تو مجھے کسی سے ڈگری کا نہیں پوچھا, نہ انہوں نے کچھ جو ٹرانسکرپٹس وغیرہ کا اس قسم کی کسی کی چیز انہوں نے نہیں پوچھا. جو میرا انٹرویو ہوا تھا, جو میرے ٹیسٹ ہوئے تھے, وہ ساری چیزیں انہوں نے وہی اسکلز اور جو نالج آپ کے پاس تھا اسی کے بیس پر وہ میری جاب ہوئی تھی وہاں. تو میں وہی ہے کہ اسکلز گریب کریں. اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ سے لے کے گیم ڈیولپمنٹ سے لے کے کافی زیادہ نیرو وہ آ گئی ہیں, آپ کی فیلڈز آ گئی, آپ کی ڈائمینشنز آ گئی ہیں, اس میں آپ اپنے آپ کو ماسٹر کروا سکتے ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے 2-3 سال پہلے. اس قسم کی جاب
और सिस्टम की स्किल सेट भी आ चुकी हैं अभी, आप उससे बाकायदा अच्छी रेवेन्यूज कमा सकते हैं। अगर आप वीलॉग से देखें, जो यूट्यूबर्स हैं उनको देख लें, आप पहले से तो काफी अच्छी अच्छी डायमेंशंस आ गई हैं और आप स्किल्स को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। डिग्रीज इतनी मैटर नहीं करती। जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपसे कभी डिग्री का नहीं पूछेंगे, वो आपसे कभी सर्टिफिकेट्स का नहीं पूछेंगे, वो वही ऑन द स्पॉट आपको एसेस करेंगे। 4-5 मिनट में आपको पता लग जाएगा, उनको पता लगेगा बंदा किस लेवल का है और हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो रिकमेंडेशंस वही है। और रेवेन्यू जनरेशन, आप जो फ्री लॉन्चिंग का बता रहे थे, इतने सारे डायमेंशंस हैं कि आप उससे काफी आसानी से, जो अभी से गेमर कम्युनिटी की आप बात कर रहे थे, तो बंदा यकीन नहीं कर सकता कि बीइंग ए गेमर आप उनसे रेवेन्यूज कमा सकते हैं। तो काफी अच्छी चीजें हैं आप, क्योंकि वो भी स्किल सेट हैं जो पाकिस्तान के गेमर से जो उन्होंने कॉम्पीट किया इंटरनेशनली, फर्स्ट प्राइजेस उन्होंने ली है, तो ये भी अभी एक एज ए स्किल लोग मान रहे हैं और उसमें अभी लगे हैं। जी बिल्कुल। इमरान, आपने जो बात की उसको अगर मैं समराइज कर सकूं ना, तो मैं कहता हूँ फ्रीडम ऑफ प्लेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ टाइम। ये 3 चीजें अगर आपकी लाइफ में आ गई ना, तो मतलब पैसा कमाना आपके लिए ये शौक बन जाएगा। मतलब आप एक एम्प्लॉय की तरह किसी बंद कमरे में पूरा दिन जो है 9 to 5 बैठे नहीं होंगे। यू विल ट्रैवल, यू विल मीट पीपल, यू विल नेटवर्क, एंड एट द सेम टाइम आपके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया, लोग फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं, व्हाई नॉट जनरेट इनकम फ्रॉम दिस। लेकिन वही बात, इसके लिए टूल्स हैं, इसके लिए अपने स्किल्स हैं, आप पहले वो इक्विप करते हैं एंड देन यू कैन अर्न मनी, जो भी आपका फील्ड ऑफ पैशन है। तो मैं चूंकि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मोहसिन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा एंड इट इज रियली इम्पोर्टेंट। वो इस वजह से कि देखिए, आप अपनी लाइफ को देखिए, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद आपने MBA किया, उसके बाद जो है आप प्रोफेशनल फील्ड में आपने ICT सेक्टर, एंड देन यू मतलब यू गॉट दो स्किल सेट्स। उसके बाद आपने ट्रेनिंग, बाकी लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। तो इफ आई कुड टेक यू 10 or 15 years बैक, मैं आपको 10-15 साल पीछे लेके जाता हूँ, तो मतलब आप थोड़ा सा रिव्यू इंसान करते हैं कि कहाँ पे, वो कौन सी स्टेज में आपकी कोई ऐसा स्टेज हो आपकी एजुकेशन में या प्रोफेशन में जिसको आप कोई चेंज करना चाहते हो या कोई इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि अभी आप यू आर लुकिंग एट योर लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप कहते हैं कि अगर यार मैं ये करता तो मेरी लाइफ इंप्रूव हो जाती, किस तरीके से। सो आप थोड़ा सा इसके बारे में शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। There is one thing which I have learned with my life. मैं जिस वक्त दुबई में था, वो जो जॉब में स्विच करना चाहता था, I have to come back to my country, और जो मैं कर रहा था वो टास्क उस बेस पे नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे लिया, and then I switched back to a country. I learned one thing from there, and that is web development. मैं गया as a consultant, और as a consultant जाने के बाद वो काम नहीं हो सका with the telco, and an organization who actually hired me asked me to start web development. I never done that web development in my life, and that was kind of a very tough thing, जो मैं समझ सकता था, लेकिन मैंने किया, और I was regretting कि यार मुझे नहीं आना चाहिए। ठीक है, there is one thing which I have learned with my life, कि अगर आप लाइफ में कुछ करते हैं, that's something being always paid off to you. और then I moved back to my country, और मुझे अपनी मतलब की जॉब भी मिल गई। But one of the amazing thing is the Central Asian Cellular Forum was more kind of a telecom oriented organization, and that's my initiative in the organization. I moved that organization from telecom to more in ICT, more into IT. और आप ये बोल सकते हैं कि the DERBS initiative which we have been done was started from just a small app. So there's one thing, let's get back to your question, कि you should be never regret that in your life that आप अब करियर मूव करते हैं, या आपने जॉब मिल रही थी वो रह गई है, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है वो नहीं चल सका. You always learn at each and every step in your life, and it's being added in your skill or in your profile, and that will be converted into a very good thing in future. You never know.
बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि आप लाइफ में जो चीज़ करते हैं ना, जितनी ज़्यादा फेलियर्स आपकी लाइफ में आती है, इसका मतलब ये कि आपने उतनी ज़्यादा नई चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स और आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे-कैसे, किस-किस एक्सपीरियंस ने आपको क्या-क्या स्किल सिखाया है, तो व्हेन यू सिट देयर एट द टॉप, फिर आपको लगता है कि द रीज़न आई मेड इट टू दिस प्लेस वाज़ कि मैंने वो काम किया उसी की वजह से, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नो रिग्रेट्स इन लाइफ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। अच्छा, सो विद दिस हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ आवर स्पीकर्स, मोहसिन एंड इमरान। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के ये जॉइंड अस, एंड वी विल आल्सो थैंक आवर व्यूअर्स जो हमें अभी देख रहे हैं एंड दे जॉइंड अस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा हमारे सीकॉस के एलुमनाई से। So with this, I would like to say goodbye to all of you and hope to see you guys next week. Thank you. अपना ख्याल रखिएगा। Thank you everyone. Take care.